Good morning, dear students. In the previous lecture, we have discussed how to determine the trend. I have defined some methods to find the trends: graphical method, semi-average method, method of least square, and method of moving average. Today, we will discuss how we will measure the seasonal variation. There are the four methods to measure the seasonal variation. One is simple averaging method, ratio to moving average method. Next one, modified average method, or you say ratio to trend. And last one is linked related method. We will discuss each method one by one with the help of suitable example. Okay. Now the first problem is just to calculate the seasonal indices for each quarter by the method of simple average. You are very much aware with the average. What is the average? Sum of all the values divided by the number of values. Okay? This is the data given in the column year and quarter. ईयर दिया हुआ है 1990 से लेकर 1994, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड quarter and fourth quarter. You know the quarter? Each quarter contains 3 months. Each quarter contains 3 months. There are so many examples in the books. In the books, you will see some example of the quarterly and some example of the monthly. कुछ एग्जाम्पल्स क्वार्टर वाइज दिए हुए हैं आपके पास, कुछ मंथ वाइज दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डाटा दिया हुआ है 1990 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यूज दी हुई है आपके पास 30, सेकंड में 81, क्लियर आ रहा है, इस तरीके का डाटा दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, इनका क्वार्टर वाइज टोटल कर लिया. तो आपने देखा फर्स्ट क्वार्टर का टोटल भी हम करते हैं 30 प्लस 33 प्लस 42, 56, 57, इस टोटल TI मतलब 280. इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर का सम 711, sum of third quarter is 512, and sum of fourth quarter its sum is 1048, right? यदि इसी तरीके से उनका रो वाइज टोटल करें, रो वाइज टोटल 90 का आ रहा है 292, 91 का 394, 92 का
515, 93 का 592, 94, 696 and gross total is 2489. It might be some mistake in a calculation, but you have to see the procedure, okay, how to find the seasonal indices by simple averaging method. कैलकुलेशन कोई मैटर नहीं है. तो टोटल टीआई मीन्स फर्स्ट क्वार्टर T1 218, T2 711, T3 512 and T4 is 1048. Average TI bar हमने लिखा भी इधर कि here T1, T2, T3, T4 are the sum of quarterly values. They are all overall years. T1 bar, T2 bar, T3 bar, T4 bar with the respective average. And T bar with the average of all average. Yeah, you say pooled average, yeah, you say pooled mean. T bar is equal to summation Ti bar upon K. I is equal to 1 to K. Here I is 1 to 4. So कितने क्वार्टर हैं आपके पास? They are the 4 quarters. K is equal to 1 to 4. तो आपने क्या किया? एवरेज निकाल लिया. T1 bar that is 43.6. How 218 is divided by 5, it will come 43.6. Similarly, T2 bar 142.2, T3 bar 102.4 and T4 bar 1048. And total summation again listen. T1 bar 43.6, T2 bar 142.2, T3 bar 102.4 and T4 bar 209.6. अब प्रॉब्लम आती है आपको ग्रांड मीन निकालना है आपके पास या यू से एवरेज ऑफ ऑल एवरेजेस. तो इट विल बेटर you will take sum of all the values. Sum of all the values is 2489. And how many values? These values are 20. You will divide 2489 by the 20 and you will get 124.45. That is our T1. अब कैलकुलेट करना है हमको सीजनल इंडिसेस फॉर द ईच क्वार्टर. ये हो जाएगा आपका Ti बार अपॉन T बार इंटू 100. T1 बार कितना है आपके पास 43.6 और T बार इज 124.45. ये बाई मिस्टेक आई हैव रिटन रॉन्ग हियर कि 218 अपॉन 43.6. इट इज नॉट. ये होगा इस जगह पर 43.6 अपॉन 124.45 इंटू 100. It's a writing mistake, but result is correct. 43.6 upon 124.5.
into 100. It clear? और ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35.03. नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर के लिए 140.2.2 अपॉन 124.45 into 100 and this value is 114.26. Similarly, for the third quarter, 102.4 upon 124.45, that is 82.28. 209.6 upon 124.5, this is a 168.42, right? और इसका पूरा टोटल आना चाहिए 400. अप्रॉक्स वैल्यू इट मे बी 399.95 या 99 या 400.01. Approximately it should be equal to the 400, right? ये इसका चेक करने का एक आपका प्रोसीजर है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो रॉन्ग है या करेक्ट है. इट क्लियर? सीज एंड डिसीज आपके पास हो गया 35.03 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, 114.26 फॉर द सेकंड क्वार्टर and 82.28 for third quarter and 168.42 is for the fourth quarter. Next one. Very interesting. Calculate seasonal indices for each quarter by ratio to moving average method. इसके अंदर आपका डाटा सेम दिया हुआ है फॉर द सेम डाटा जो भी आपने देखा था, अभी हमने किया था आपके लिए. सिंपल एवरेज में जो डाटा हमने यूज किया था उसी डाटा को यूज कर रहे हैं हम. पर लेकिन इसको क्या किया हमने, हमको पहले ट्रेंड क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है. क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेंड कैलकुलेट करना है. तो हमने क्या काम किया, आपके पास जैसे 90s के अंदर वैल्यू दी हुई थी आपके पास. फर्स्ट क्वार्टर में 30 देखिए आप, ईयर और यूटी. फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 30 है, सेकंड की 81, थर्ड की 62, फोर्थ की 290. In the for the 91, again first quarter 33, second quarter 104, third quarter 86, 171, 42, इस तरीके से एंड सो ऑन चलते चले जाए. यदि मेरी बात को और समझिए आप इस बात को कि किस तरह लिखा हमने कि 2019 में सपोज कीजिए आपके 12 मंथ जनवरी टू दिसंबर, 2020 के अंदर जनवरी टू दिसंबर. तो जब दिसंबर क्लोज हो गया 19 का तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी. डाटा को हमने रीअरेंज कर लिया जस्ट टू फाइंड द मूविंग एवरेज. तो आपको मैंने लास्ट टाइम मूविंग एवरेज का मेथड बताया था. आप मूविंग एवरेज निकालना जानते हैं. क्या बताया था? बड़ा सिंपल, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर रहा हूँ कि वी विल टेक द सम ऑफ द फर्स्ट 4 वैल्यूज and put it against the second and third. And in the next step, leaving the first term and take the sum of next 4 values and put it against third and fourth and so on. तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट 2 वैल्यूज होंगी और लास्ट 2 वैल्यूज होंगी उनका हम मूविंग ट्रेंड वैल्यू मूविंग एवरेज से नहीं निकाल सकते. आप देख भी रहे हैं इसके अंदर
कि 90s का फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की मूविंग एवरेज की वैल्यू नहीं निकली है, और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ की नहीं निकली है। आप इस चीज को निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेजेस सेंटर्ड, हमने इनको सेंटर कर लिया। इट इज कन्वीनियंट टू कंप्यूट नेक्स्ट यूजिंग द मॉडल ut बराबर t इंटू एस इंटू सी इंटू आर। यहाँ जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज कर रहे हैं, ut बराबर t इंटू एस इंटू सी इंटू आर। तो नेक्स्ट सिस्टम में देख रहे हैं हमने क्या किया कि ut अपॉन t इंटू 100, ut अपॉन t इंटू 100। ut is a original value and t is a trained value, राइट। तो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के लिए नहीं निकलेगा, थर्ड क्वार्टर के अंदर आपका कितना हो जाएगा 62 अपॉन 73.4 इंटू 100, इट विल बिकम 84.47। In the next step 119 upon 76.6, it will come 155.35, and similarly you can calculate further for the 91 year, 92, 93 and the 94। हमारे पास 94 का थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आप जानते भी हैं। तो आपको इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू में से आपने 10 वैल्यू को निकाल दिया, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि जो भी वेरिएशन हो रहा है हमारे पास वो सिर्फ सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम की वजह से हो रहा है। ये हम पहले भी डिस्कस आपसे कर चुके हैं कि किसी भी आइटम के अंदर यदि जो भी वेरिएशन है, जो भी इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट किस चीज का है, वो सभी का इफेक्ट है। आइदर इट विल बी फॉर द ट्रेन का भी हो सकता है, कुछ पोर्शन सीजनल का हो सकता है, साइकिल का हो सकता है। तो हमको यहाँ करना क्या है, उनको डिटेक्ट करना है अपना कि आपका वेरिएशन किसकी वजह से कितना कितना अलग अलग कर देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिमेनिंग वेरिएशन किसका है। ओके, नाउ तो हमने क्या किया, हियर वी यूज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ut बराबर t इंटू एस इंटू सी इंटू आर, divide each entry ut by these 10 value and multiply by the 100, that is obtain ut upon t into 100. In the next step we will sort out this percentage quarter wise and find the average for each quarter. इस सारी प्रॉब्लम को हमने क्या किया, जितने परसेंटेज है क्वार्टर वाइज परसेंटेज जो आए हैं इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि हमको निकालना किसका है, क्वार्टर का निकालना है। तो आपने देखा, देखिए आप, कंप्यूटेशन फॉर सीजनल इंडिसेस ईयर एंड क्वार्टर्स आर 1 2 3 4। यू सी इन 1990 फर्स्ट क्वार्टर ब्लैंक, सेकंड क्वार्टर ब्लैंक, इन द थर्ड क्वार्टर वैल्यू इज 84.47, इन द फोर्थ क्वार्टर its value is 155.35, right? Similarly, in the 91 first quarter value is 40, and similarly you may calculate and put it here like that. The last one in the 94 first quarter is 42.616 and second quarter is 119.52, it will be 52 or 57, whatever it may be, and the third और fourth को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल, अभी आपने सिंपल एवरेजिंग मेथड देखा था, आप सिंपल एवरेजिंग मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अभी आपने क्या किया, उसको अलग कर लिया 10 वैल्यू को, तो जो वेरिएशन वो किससे है,
SCR का वेरिएशन रह गया। तो टोटल TI आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को सम कर लीजिए, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू को सम कर लीजिए, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू सम कर लिया, फोर्थ क्वार्टर की सम कर लिया, एवरेज निकाल लिया हमने। TI बार कैसे निकाला? अब आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सिर्फ कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यूज हैं, 5 नहीं है। नॉन वैल्यू कितनी है? 4, 40, 36.65, 39.77 and 42.16. So its total is 158.58. And similarly for the second quarter, total sorry for the first quarter 158.58, एवरेज कैलकुलेट कर लिया, 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 39.64. In the second quarter 475.16 divided by 4, 118.79. तो you may calculate. अब देखा मैंने लिखा एवरेज TI बार इज 98.90, इट्स अप्रोक्स टू द 100. In the next step we can calculate the seasonal indices TI bar upon T bar into 100. कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? TI बार कितना है? 36.64, 39.64 से आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक सेकंड बताता हूँ आपको टी बार कितना है इसका। टी बार इज 99.0, टी बार इज 99.90, 39.64 upon 99.90, that is 39.68, and 118.79 upon 99.9, it is 118.9, and so on. And total sum is 400. And this 400 is very valuable. ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो आपने कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है या कहीं ना कहीं कोई आपसे मिस्टेक हो गई है। इट में कम 399.992 या यू से 400 0.12, it doesn't matter, it is approx to the 400. Okay. For the references, I have also used, and you may be used for the references, and for the more detail for the study, Applied Statistics by S.C. Gupta and V.K. Kapoor, and next Applied Statistics by I.A. Ansari, O.P. Gupta and S.S. Chaudhary. And for the objective, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे आपके अभी तक जो प्लान में है, तो उसके लिए आपको पढ़ लीजिए आप प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय डॉक्टर B.K. अग्रवाल। इसका पब्लिकेशन है आपका न्यू एज इंटरनेशनल। देखिए आपको कोई परेशानी होने की बच्चों जरूरत नहीं है। हम आपको मैटर, जितना भी मैटर है, आपको जितनी पीपीटी आपको दिखाई जा रही हैं, इन सबको आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपके ग्रुप पे इसका PDF फाइल भेज दी जाएगी जल्दी। इसके लिए आप मेरे ईमेल आईडी पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss rigid linked relative method and modified averaging method. Thank you so much. We will meet again